Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about kidney transplant and classification of animals on the basis of temperature for class second year biology. First we discuss about the objective learning. We want to understand the kidney transplant and their problems like tissue rejection, and also discuss the classification of animals on the basis of their body temperature and also on the basis of body heat production, and also discuss about the thermoregulation. First we discuss about kidney transplant. The kidney transplant can be defined as the implantation of a healthy and functional kidney in the body is called kidney transplant. When the renal failure or uremia occurs, then our kidney does not perform normal function. This is called kidney failure or renal failure. When our kidney does not perform proper function, and they become non-functional, then we receive a kidney from donor and place it on the at this part, that is the urinary, along with the urinary bladder. In this case, this functional kidney filtrate over body waste and remove the nitrogenous bed from our body and brings the osmoregulation in our body. So this is about the kidney transplant, which is occur when our kidney does not perform a proper function. When kidney fails to do their job, then the healthy kidney placed in the along with the urinary bladder is implanted along with the urinary bladder. Healthy kidney is placed at that place, then which causes the to remove nitrogenous waste from our body. When we insert the kidney in the body from donor, then this kidney is recognized by our immune system as a foreign agent. When our immune system recognizes it as a foreign agent, then it produces antibodies which are responsible for the tissue rejection. These antibodies destroy these kidney cells and they are responsible for tissue rejection. That's why we use medicines to avoid the tissue rejection. For example, cephalosporin is a common medicine which is utilized, and it causes the suppressor of immune system and make our kidney to do their work. So different medicines are used for the suppression of the immune system. जब अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है जैसे इसको फॉरेन एजेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज़ करेगा, तो ये एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करेगा जो किडनी के सेल्स को डैमेज कर देगी, तो जिसे हम क्या कहते हैं टिश्यू रिजेक्शन। तो उसके लिए डिफरेंट हम मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर दे, सप्रेस कर दे, उसको दबा दे, और ताकि किडनी जो है अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। और लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ मेडिसिन या एक्सेस यूज ऑफ मेडिसिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग इफेक्ट ऑन लीवर एंड किडनी आल्सो। अगर ज़्यादा मेडिसिन्स अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लीवर पे और जो किडनी है उस पर क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो है अदर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बॉडी के अंदर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ animals on the basis of temperature. This is the all classification scheme of animal on the basis of body temperature, that is called poikilotherms and homeotherms.
Poikilotherms means they can not maintain their body temperature constant. They are get heat from the environment. That's why they are called poikilotherms. Their body temperature variable with their environment. इसमें क्या होता है कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखते, जो बाहर का वो टेम्परेचर होगा वही इनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्म्स, और इनको हम एक्टोथर्मल एनिमल्स भी कह सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? मोस्ट फिशेस, इनवर्टिब्रेट्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स इनकी एग्जांपल्स हैं। होम्योथर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से क्या है, विच मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, दे गेट देयर temperature constant and face the irrespective of the fluctuation of the environment, के बाहर जो भी टेम्परेचर हो ये अपना टेम्परेचर क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं या ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, होम्योथर्म्स। दे कैन देयर बॉडी टेम्परेचर क्या है, दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड गेट द हीट फ्रॉम देयर बॉडी। अब ये हीट कहाँ से लेंगे, दे थ्रू मेटाबॉलिज्म। और इनकी एग्जांपल्स क्या है, बर्ड्स एंड मैमल्स। दिस क्लासिफिकेशन स्कीम इज कंसीडर एज अ ओल्ड स्कीम ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब जो मॉडर्न स्कीम है जिसके बिना पर एनिमल की क्लासिफिकेशन हुई है उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी हीट टेम्परेचर, बॉडी हीट प्रोडक्शन। जो आपके मेटाबॉलिज्म की वजह से जो हीट की प्रोडक्शन होती है उसकी बिना पर जो क्लासिफिकेशन हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं। आप उसके हिसाब से क्या एनिमल्स के हमने डिविजन्स किए हैं उसको अब देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है एक्टोथर्म, विच गेन देयर मेजॉरिटी ऑफ द हीट फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। अब ये क्या, ये अपने वही इसी तरह ही आपने ये बात याद रखनी है कि ये अपनी जो हीट है ये कहाँ से ले रहे हैं, एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हीट गेन करें फ्रॉम एनवायरनमेंट दैट दे आर कॉल्ड एज एक्टोथर्म्स। देयर एग्जांपल्स क्या होंगी, मोस्ट फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एक्टोथर्म। इसी तरह जो एंडोथर्म है, दे गेट देयर हीट बाय मेटाबॉलिज्म, जो अपना मेटाबॉलिज्म करें, हीट की प्रोडक्शन करें। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, एंडोथर्म्स। ये अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और इन एनिमल्स को क्या कहेंगे हम, एंडोथर्म्स। और देयर कॉमन एग्जांपल्स आर मैमल्स एंड बर्ड्स। हेटेरोथर्म्स क्या है, सम पार्ट ऑफ द बॉडी गेट हीट फ्रॉम मेटाबॉलिज्म while अदर गेट इट फ्रॉम इन्वायरमेंट। 50% मेटाबॉलिज्म से हीट गेन करे और 50% इन्वायरमेंट से हीट गेन करे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो है हम क्लासीफाई करते हैं एज अ हेटेरोथर्म। और इनकी कॉमन एग्जांपल क्या है, बैट्स एंड हमिंग बर्ड्स। अब हम बात कर लेते हैं थर्मो रेगुलेशन की। थर्मो रेगुलेशन को हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर की रेगुलेशन हो रही है। अगर हम इसको फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर जो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है। अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो राइज़ कर जाए 37, हमने जब उधर भी बात करी तो हमने कहा था कि हमारे पास एक सेट पॉइंट होता है। सेट पॉइंट कौन सा है हमारे पास, 37 डिग्री सेल्सियस। जब 37 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर राइज़ करेगा तो हमारे जो हैं सेंड होगा मैसेज टू द के इम्पल्स सेंड करेगी मैसेज टू द इफेक्टर। और इफेक्टर्स क्या करेंगे, जो उसके मुताबिक जो है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए क्या होगा, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे और जो स्वीट ग्लैंड्स हैं वो सक्रीट करने शुरू होंगे, पसीना आना शुरू हो जाएगा। और वो जो आपको जो पसीना आ रहा है, जो स्वेटिंग हो रही है बॉडी में और आपकी जो ब्लड वेसल डायलेट कर रही है, उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग में जो है लॉस कर जाएगा बाय इवेपोरेशन विच काजेज अ कूलिंग इफेक्ट। और आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा एंड देन गेट्स टू द नॉर्मल अकॉर्डिंग टू द सेट पॉइंट दैट इज 37 सेल्सियस। इसी तरह अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या करे, ड्रॉप हो जाए, नॉर्मल की जगह से ड्रॉप हो जाए, डिक्रीज हो जाए, फिर नर्वस सिस्टम जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है, जो हमारा ब्रेन है, उसे डिटेक्ट करेगा। और कौन सा हमारा
पार्ट कंट्रोल कर रहा होता है टेम्परेचर को? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा और स्वीट ग्लैंड को जो है वो क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देगा कि वो स्वीटिंग ना प्रोड्यूस करे, पसीना ना प्रोड्यूस हो, जिसकी वजह से क्या होगा? जो बॉडी में हीट जो होगी वो कंजर्व्ड होगी और उसके साथ साथ आपके जो मसल सेल्स हैं वो शिवरिंग करेंगे ताकि क्या हो? हीट की प्रोडक्शन हो। और जब वो मसल आपके शिवरिंग करेंगे जिसकी वजह से और बॉडी की जो हीट है उसे कंजर्व किया जाएगा तो आपका बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा, बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका दोबारा जो है जो सेट पॉइंट है उधर आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो है वो थर्मो रेगुलेशन हो रही है। सर्दियों में क्या होता है कि मसल शिवरिंग करते हैं ताकि क्या हो? हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हाई हो जाए। उसके लिए हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ होता है जो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देता है और जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और उसकी वजह से जो हमारा जो ड्रॉप हुआ था फिर दोबारा नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जब गर्मियाँ आती हैं हमारा टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर जब इंक्रीज़ हो जाता है तो हमें स्वेटिंग होती है, हमारे ब्लड वेसल जो हैं डायलेट कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से हीट लॉस हो एनवायरनमेंट में और जिसकी वजह से हमारा दोबारा जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो जाए जो 37 सेल्सियस डिग्री है। तो ये तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था जब हमने होम्योस्टेसिस को पढ़ा था। तो और इसके अलावा जो है इधर भी हमने दोबारा इसको डिस्कस कर लिया है कि कैसे हमारी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन हो रही है। तो इस तरह हमारा ये जो चैप्टर है वो एंड हो गया है। तो इस चैप्टर में हमने जो है और किसके बारे में पढ़ा? होम्योस्टेसिस के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में और थर्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ा। और जो आज के लेक्चर में हमने जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट और उसकी टिश्यू रिजेक्शन और थर्मो रेगुलेशन की बिना पर जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।